Hello learners, I once again welcome you all to our YouTube channel. We are learning synonyms and antonyms asked in previous year question papers of various examinations such as SSC, Banking, Railways, NDA, CDS, etc. If you have not watched our previous videos, you can watch those videos by simply clicking on the links available in the description box of this video only. So let's not waste our time and begin our today's session. Friends, the first question for today's session is select the option that is nearest in meaning to the given word. This question is from CDS Part 1, which was conducted in 2020. The word is implication. It's a noun. Let's look at our options: consequences, inferences, feedback, planning. These are the options. Let's look at the meaning of implication. It means a possible significance of something. Significance of something. Significance of something. Something. किसी भी चीज का प्रभाव क्या होगा, पॉसिबल प्रभाव क्या होगा, उसको हम इम्प्लीकेशन कहते हैं. लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1 इज कंसिक्वेंसेस. इट मींस समथिंग प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉज. समथिंग प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉज. किसी इवेंट के बाद का इवेंट, उससे रिलेटेड जो इवेंट हो उसको हम क्या कहेंगे, कंसिक्वेंस कहेंगे, प्रायर इवेंट का. Let's move on to next option, which is inferences. It means the act of inferring. The act of inferring. Inferring. The act of inferring is referred to as inferences. Let's move on to next option, which is feedback. It means the transmission of evaluative or corrective, you can also say, or corrective suggestions of an activity. तो किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन को इवेलुएट करने के बाद जो आपको जो इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसमिट किया जाता है वो फीडबैक कहलाता है. लेट्स मूव ऑन टू लास्ट ऑप्शन, विच इज प्लानिंग. इट मीन्स द एक्ट ऑफ मेकिंग प्लान. द एक्ट ऑफ मेकिंग प्लान. प्लान बनाने का एक्शन क्या कहलाता है, एक्ट क्या कहलाता है, या प्रोसेस क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है. इम्प्लीकेशन का पूछा गया है सिनोनिम, नियरेस्ट मीनिंग पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट वन. Consequence has the same meaning as the implication has. Let's move on to next question. The question is select the option that is nearest in meaning to the given word. This question is also from the same examination, CDS Part 1 2020. The word is contagious. It's an adjective. Let's look at the options available. Complicated, transmittable, effective, unthinkable. These are the options. Let's look at the meaning of contagious. It means easily spreadable. If something is easily spreadable, it means it's contagious. Spread होने का मतलब क्या होता है ना, मूवमेंट फ्रॉम वन पर्सन और प्लेस टू अनदर पर्सन और प्लेस. तो स्प्रेड करना मतलब फैलना होता है. तो जो इजिली फैले, तेजी से फैल सके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो फैले, उसको हम कैसा कहते हैं, कॉन्टेजियस कहते हैं. लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस वन बाय वन. ऑप्शन नंबर 1 इज कॉम्प्लिकेटेड. इट मींस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. difficult to understand or explain. If something is complicated, it means it is difficult to understand or explain. Let's move on to next option, which is transmittable. It means which can be spread out. Let's move on to next option, which is effective. It means producing a desired or decided result. So let's move on to last option, which is unthinkable. It means being contrary to fact or reason.
जो फैक्ट, तथ्य और तर्क से कॉन्ट्ररी हो, कॉन्ट्राडिक्शन में हो, उसको हम कैसा कहेंगे? अनथिंकेबल कहेंगे। अब कॉन्टेजियस का हमसे पूछा गया है सिनोनिम, तो ऑप्शन नंबर 2 ट्रांसमिटेबल वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ट्रांसमिटेबल, the meaning of transmittable is nearest in meaning to the given word contagious. So we would mark option number 2 as the correct one. Let's move on to next question. Just select the option that is nearest in meaning to the given word. This question is also from the same examination, CDS Part 1 2020. The word is incorporate. It's a verb. Let's look at our options. Option number 1 is exclude. Option number 2 is integrate. Option number 3 is lay down. Option number 4 is remove. Let's look at the meaning of incorporate. It means to combine or blend something with another thing. तो किसी भी चीज को किसी भी दूसरी चीज के साथ ब्लेंड करना, मिलाना, कंबाइन करना, जोड़ना क्या कहलाता है? इनकॉर्पोरेट करना कहलाता है। इनकॉर्पोरेट का हिंदी में मतलब होता है सीधा सीधा शामिल करना, शामिल करना, शामिल करना। लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 इज एक्सक्लूड. इट मीन्स टू एक्सपेल और बार फ्रॉम समथिंग। तो एक्सक्लूड करने का सीधा सा मतलब होता है कि बाहर कर देना। एक्सक्लूड करने का मतलब होता है बाहर कर देना, बाहर करना। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज इंटीग्रेट. इट मीन्स टू यूनाइट समथिंग विथ another thing. तो किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ यूनाइट करना, मिलाना, जोड़ना, एक साथ करना क्या कहलाता है? इंटीग्रेट करना कहलाता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज ले डाउन. ले डाउन के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है सरेंडर करना, टू सरेंडर। अब इसका सेंटेंस एक बना के देखें तो एनिमीज हैड लेट डाउन देयर आर्म्स. जो दुश्मन थे उन्होंने अपने आर्म्स को, जो उनके हथियार थे, उसको क्या किया? सरेंडर कर दिया। और ले डाउन का मतलब ये भी होता है टू इस्टेब्लिश. लेट्स मूव ऑन टू लास्ट ऑप्शन विच इज रिमूव. रिमूव का मतलब होता है टू चेंज लोकेशन और यू कैन ऑल्सो से पोजीशन. तो रिमूव करने का मतलब होता है हटाना। रिमूव करने का मतलब हटाना होता है, एक जगह से हटा करके दूसरे जगह, दूसरे लोकेशन पर, दूसरी पोजीशन पे उसको शिफ्ट कर देना रिमूव करना कहलाता है। इनकॉर्पोरेट का हमसे पूछा क्या गया है सिनोनिम. ऑप्शन नंबर 2 इंटीग्रेट यहाँ पर हमारा करेक्ट और एप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा, क्योंकि इंटीग्रेट का भी वही मतलब होता है जो मतलब होता है आपका इनकॉर्पोरेट का। तो वी वुड मार्क ऑप्शन नंबर 2 एज द करेक्ट वन. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The question is select the option that is nearest in meaning to the given word. This question is also from CDS Part 1 2020. The word is generic. It's an adjective. Let's look at our options. Specific, crude, broad, non-standard. These are the options available. Let's look at the meaning of generic. It means not having particular brand. तो जिसका कोई पर्टिकुलर ब्रांड ना हो, जिसका कोई स्पेसिफिक ब्रांड ना हो, उसको हम कैसा कहते हैं? जेनेरिक. आप हमेशा सुनते हो जेनेरिक मेडिसिन, आपने कई बार सुना होगा जेनेरिक मेडिसिन. तो वो ऐसी मेडिसिन होती है जिनका कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं होता है. तो जिसका कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? जेनेरिक कहते हैं. या एक तरीके से आप इसको भी ये कह सकते हो कि जो कि बहुत ही कॉमन हो, जो वेरी कॉमन हो, जो बहुत ही सामान्य हो, उसको हम जेनेरिक कहते हैं. Let's move on to our options. Option number 1 is specific. It means relating to something very peculiar मतलब एक विशेष तरीके का, अलग, एकदम दूसरों से भिन्न.
तो जो बिल्कुल उसकी एक अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो दूसरों से भिन्न होता है, जो सामान्य नहीं होता, जिसमें यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज क्रूड. इट मीन्स रफ और प्रिमिटिव स्टेज. तो क्रूड का मतलब क्या होता है? बीइंग इन रफ और प्रिमिटिव स्टेज. तो कोई भी चीज अगर रफ स्टेज में है, अपने इनिशियल स्टेज में है, फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, या अपने प्रिमिटिव स्टेज में है, तो प्रारंभिक अवस्था में है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रूड कहते हैं. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज ब्रॉड. इट मीन्स एक्सटेंडिंग फार एंड वाइड. तो जो काफी दूर तक फैला हो, काफी चौड़ाई में फैला हो, काफी दूर तक फैला हो, उसको हम कैसा कहते हैं? ब्रॉड कहते हैं. लेट्स मूव ऑन टू लास्ट ऑप्शन विच इज नॉन स्टैंडर्ड. इट मीन्स नॉट स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? मानक. कोई मानक तय किया जाता है. अगर कोई चीज नॉन स्टैंडर्ड है तो उसका मतलब वो मानक के अनुरूप नहीं है. ऑप्शन नंबर 4 is the most appropriate synonym of the given word generic. So we would mark option number 4 here as the correct one. Let's move on to next question. The question is select the option that is nearest in meaning to the given word. This question is also from CDS Part 1 2020. The word is stellar. It's an adjective. Let's look at our options. Option number 1 is extraordinary. Option number 2 is eclipse. Option number 3 is poor. Option number 4 is not great. Let's look at the meaning of stellar. It means of or relating to the stars. जो स्टार्स से जुड़ा हुआ हो, जो तारों से जुड़ा हुआ हो, संबंधित हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेलर. और ये एक एडजेक्टिव है. Let's move on to our options one by one. Option number 1 is extraordinary. It means going beyond what is usual. तो जो यूजुअल और कॉमन. तो सामान्य जो चीजें हैं, जो यूजुअल चीजें हैं, उनके बियॉन्ड जाना, उस सीमा को पार कर जाना, उससे आगे जाना, क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्लिप्स. इट मीन्स टोटल और पार्शियल obscuring of a celestial body by another body. किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से, खगोलीय पिंड से ढक जाना, उसकी उस पर परछाई पड़ना, उसको ढक लेना, क्या कहलाता है? इक्लिप्स कहलाता है. आपने सुना होगा सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण और ल्यूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज पुअर. इट मीन्स लेस देन adequate. If someone is having something in the quantity less than adequate, so we will say that the person is poor. तो poor का मतलब होता है गरीबी या गरीब. poverty का मतलब होता है गरीबी, poor का मतलब होता है गरीब. और not great का मतलब क्या होता है? जो हमारा लास्ट ऑप्शन है. तो not great का मतलब क्या होता है? lacking in greatness. ग्रेटनेस का मतलब क्या होता है? महानता. तो जिसमें महानता की कमी हो, जो सामान्य सा हो, साधारण सा हो, उसको हम क्या कहते हैं? नॉट ग्रेट कहते हैं, जो लैक करता हो ग्रेटनेस में. तो स्टेलर का हमसे क्या पूछा गया? सिनोनिम. तो ऑप्शन नंबर 2 अगर हम देखें, इक्लिप्स, तो इट इज समवॉट related to the meaning of stellar. So we would mark option number 2 as the correct one. Eclipse would be the appropriate synonym of the given word stellar. Let's move on to next question. The question is select the option that is opposite in meaning to the given word. Be very careful. Here they are asking
to select the option that is opposite in meaning to the given word. So they are asking antonym. This question is also from CDS Part 1 2020. The word is decay. It can be used as both noun as well as verb. Let's look at our options. Option number 1 is survival. Option number 2 is waste away. Option number 3 is decomposition. Option number 4 is spoil. Let's look at the meaning of decay. It means to decline, decline in health, strength और क्वालिटी. डीके का मतलब क्या होता है? डीके का मतलब होता है टू डिक्लाइन इन हेल्थ, स्ट्रेंथ और क्वालिटी. स्वास्थ्य में, शक्ति में या गुण में कमी आना, उसकी अवनति होना, उसमें डिक्लाइन होना क्या कहलाता है? डीके होना. उसका क्षरण होना क्या कहलाता है? डीके. डीके का मतलब होता है क्षरण होना हिंदी में. Let's move on to our options. Option number 1 is survival. It means the continuation of existence और life. जीवन का या existence का, अस्तित्व का continuation क्या कहलाता है? survival कहलाता है. चलिए दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं. waste away. इसका मतलब होता है, वेस्ट अवे का मतलब होता है लॉस थ्रू ब्रेकिंग डाउन ऑफ समथिंग. ब्रेक डाउन होने का मतलब टूटकर बिखरना होता है. तो किसी भी चीज का क्षरण होना, लॉस होना थ्रू द ब्रेकिंग डाउन कहलाता है वेस्ट अवे. चलिए देखते हैं अपना थर्ड ऑप्शन विच इज डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन कैन बी डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ separation of constituent parts of something. Let's move on to last option which is spoil. It means to damage seriously. गंभीर रूप से हानि पहुंचाना क्या कहलाता है? स्पॉइल. पूछा क्या गया हमसे? डीके का एंटोनिम पूछा गया है. ऑप्शन नंबर 1 देखो आप. ऑप्शन नंबर 1 जो सर्वाइवल है वही हमारा एप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा डीके का. सो वी वुड मार्क ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट वन. Let's move on to next question. Select the option that is opposite in meaning to the given word. Again, we have been asked antonym. This question is from the same examination, CDS Part 1 2020. The word is eloquently. Eloquently is an adverb. Let's look at our options. Confusingly, expressively, powerfully, fluently. These are the options available. Let's look at the meaning of eloquently. It means forcefully and fluently expressive. Let's move on to our options. Option number 1 is confusingly. It means disturbing mind और पर्पस. अगर कोई कंफ्यूजिंग है तो कंफ्यूजिंग का मतलब वो कैसा है? वो उलझन पैदा करने वाला है. तो कंफ्यूजिंग से ही कंफ्यूजिंगली बना है एडवर्ब. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज एक्सप्रेसिवली. इट मीन्स इफेक्टिवली conveying meaning or idea. So expressively का मतलब क्या होता है? एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है कि इफेक्टिवली, प्रभावकारी रूप से
किसी अपनी आइडिया को, मीनिंग को क्या करना, कन्वे करना, दूसरे को बताना, क्या कहलाता है, एक्सप्रेसिवली। आप अगर किसी चीज को इफेक्टिव तरीके से, किसी आइडिया को कन्वे कर रहे हो किसी दूसरे से, तो आप कैसे आइडिया को कन्वे कर रहे हो, एक्सप्रेसिवली कर रहे हो। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज पावरफुली। तो इसका मतलब होता है, पावरफुली का मतलब होता है इन अ पावरफुल मैनर, इन अ पावरफुल मैनर। अगर कोई आप पावरफुली कोई चीज कर रहे हो पावरफुली, तो इसका मतलब उसको आप एक पावरफुल मैनर में कर रहे हो। लेट्स मूव ऑन टू लास्ट ऑप्शन विच इज फ्लुएंटली। इट मीन्स कैपेबल ऑफ यूजिंग a language capable of using a language easily and accurately। तो eloquently का पूछा क्या गया है हमसे, एंटोनिम पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट question. The question is select the option that is opposite in meaning to the given word. This question is also from the same examination, CDS Part 1 2020. The word is inertia. It's a noun. Let's look at the options. Sluggishness, indolence, activity, torpor. These are the options. Let's look at the meaning of inertia. It means, inertia आपने सुना होगा कि प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, ये किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है, उसका गुण होता है कि अगर कोई चीज, अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, और कोई चीज अगर मोशन में है, मूवमेंट में है, तो वो मूवमेंट में रहेगी, वो मोशन में रहेंगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। लेट्स लुक एट द मीनिंग ऑफ आवर फर्स्ट ऑप्शन विच इज स्लगिशनेस। स्लगिशनेस का मतलब क्या होता है, लेजीनेस। तो लेजीनेस का मतलब क्या होता है, आलस्य। तो स्लगिशनेस का मतलब होता है लेजीनेस, और यू कैन ऑल्सो से स्लो इन मूवमेंट और एक्टिविटी, मूवमेंट और एक्टिविटी में बहुत ही स्लो होना, धीमा होना, धीरे होना, लेजी होना, क्या कहलाता है, स्लगिशनेस। लेजीनेस को हम स्लगिशनेस कहते हैं, इसको हम हिंदी में आलस्य कहते हैं। Let's move on to next option which is indolence. Indolence means inclination towards laziness। Again, आलस्य की तरफ झुकाव होना, आलस्य की प्रवृत्ति होना, क्या कहलाता है, इंडोलेंस। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं अपना, जो कि एक्टिविटी है। एक्टिविटी का मतलब होता है स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है, सक्रिय होना। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। तो सक्रिय रहने की क्वालिटी या होने का जो स्टेट है, दशा है, उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू लास्ट ऑप्शन विच इज टोर्पर। इट मीन्स स्टेट ऑफ लोअर्ड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। इसका मतलब होता है, फिजियोलॉजिकल का मतलब जो आपकी बॉडी से, बॉडीली ऑर्गन से एसोसिएटेड हो। तो जो भी एक्टिविटीज हैं, उसका लोअर्ड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, उसके जो एक्टिविटी है, उसके स्टेट को हम, उसकी दशा को कैसे डिफाइन करते हैं, टोर्पोर कहते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आलस्य से या धीमापन से जुड़ा है, आलस्य या धीमापन से जुड़ा है। तो इनर्शिया का पूछा गया है अपोजिट। तो ऑप्शन नंबर 3 आप देखो, एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट question. The question is select the option that is opposite in meaning to the given word. Again, antonym. This question is also from the CDS Part 1 2020. The word is philanthropy. It's a noun. Let's look at our options: charity, benevolence,
nastiness, likeliness. These are the options. Let's look at the meaning of philanthropy. It means goodwill, goodwill to towards fellow human beings, human beings. तो अपने फेलो जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो साथी मानव हैं, मनुष्य, उनके लिए गुडविल जो है वो फिलैंथ्रोपी कहलाती है। फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है मानव के प्रति प्रेम। तो गुडविल, मानव के प्रति गुडविल क्या कहलाता है? फिलैंथ्रोपी कहलाता है। लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 इज चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है हेल्पफुलनेस, हेल्पफुलनेस towards people, especially needy ones। तो जो जिनको जरूरत है, जो जरूरत में है, जिनको नीड है, उन लोगों के तरफ हेल्पफुलनेस जो है उसकी भावना क्या कहलाती है? चैरिटी कहलाती है। अगर इसका हम हिंदी में मतलब देखें तो दान पुण्य होता है चैरिटी का मतलब, दान पुण्य होता है चैरिटी का मतलब हिंदी में। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस का मतलब होता है डिस्पोजिशन टू डू गुड, डिस्पोजिशन टू डू गुड, टू डू गुड, और यू कैन ऑल्सो से एक्ट ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस, काइंड का मतलब होता है दयालु, काइंडनेस का मतलब होता है दया। तो एक्ट ऑफ काइंडनेस को हम क्या कहेंगे? बेनिवोलेंस कहेंगे। बेनिवोलेंस का अगर हम हिंदी में मतलब देखें तो इसका हिंदी में मतलब होता है भलाई, भलाई होता है हिंदी में मतलब बेनिवोलेंस का। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज नेस्टीनेस। नेस्टीनेस का मतलब होता है डिसगस्टिंगली, डिसगस्टिंगली, डिसगस्टिंगली फिल्थी, फिल्थी। तो जो डिसगस्टिंगली फिल्थी हो, गंदा हो, गंदगी हो, उसको हम कैसा कहेंगे? नेस्टीनेस कहेंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज लाइकलीनेस। इट मीन्स चांस ऑफ अकरेंस, अकरेंस। लाइकलीनेस का मतलब होता है चांस ऑफ अकरेंस। इसको हम क्या कहते हैं? संभावना भी कहते हैं हिंदी में, संभावना। अब पूछा क्या गया हमसे? फिलैंथ्रोपी का मतलब जो हमने देखा गुडविल होता है टुवर्ड्स फेलो ह्यूमन बीइंग, तो इसका एंटोनिम पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आप देखो, नेस्टीनेस, इट मीन्स डिसगस्टिंगली फिल्थी। तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। द मीनिंग ऑफ नेस्टीनेस is opposite in meaning to the given word philanthropy. Let's move on to the next and the last question for today's session. The question is select the option that is opposite in meaning to the given word. This question is from the same examination CDS Part 1 2020. The word is compassion. It's a noun. Let's look at our options. Empathy, carefulness, indifference, hardship. These are the options. Let's look at the meaning of compassion first. It means consciousness, consciousness, consciousness of others' distress, of others' distress, distress, with the feeling together to alleviate it। तो कॉन्शियसनेस किसी दूसरे के डिस्ट्रेस की, आपदा की, विपदा की समझ होना, और साथ ही साथ ये भावना भी होना उसको एलिविएट करने का, उसको खत्म करने का, उसको उखाड़ फेंकने का, उसके डिस्ट्रेस को, वो भावना जो है वो कंपैशन कहलाती है। कंपैशन का अगर हिंदी में हम मतलब देखो तो कंपैशन का मतलब होता है सहानुभूति, सहानुभूति। यहाँ पे दूसरे की आपदा विपदा, उसके दुख का आपको केवल भान ही नहीं होता, बल्कि आपके अंदर एक भावना भी होती है उसके दुख को खत्म करने की, उसको एलिविएट करने की।
तो इसको हिंदी में हम सहानुभूति कहते हैं, कंपैशन को। लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 इज एम्पैथी। इट मीन्स बीइंग सेंसिटिव, being sensitive to others grief or you can also say sorrow। तो किसी के दुख में, विपत्ति में सेंसिटिव होना उसके प्रति क्या कहलाता है? एम्पैथी होना कहलाता है। उसको, उस फीलिंग को हम क्या कहेंगे? एम्पैथी कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज केयरफुलनेस। इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग केयरफुल। स्टेट ऑफ बीइंग केयरफुल। केयरफुल होने का मतलब क्या होता है? सावधान या सतर्क भी होता है। तो केयरफुल होने की स्टेट या दशा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? केयरफुलनेस कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज इंडिफरेंस। इट मीन्स absence of compulsion, absence of compulsion to one thing or another, to one thing or another। किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति वो कंपल्सन का एब्सेंस, कंपल्सन का न होना क्या कहलाता है? इनडिफरेंस कहलाता है। मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जो इनडिफरेंट होते हैं वो अनिच्छुक होते हैं, कुछ मतलब ही नहीं, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उस मुद्दे पर उनको बिल्कुल रुचि ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो इनडिफरेंस को अगर हिंदी में हम देखें तो इसका मतलब होता है अनिच्छा। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट ऑप्शन विच इज हार्डशिप। इट मीन्स समथिंग that causes sufferings। तो हार्डशिप क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो क्या कॉज करे, जो दुख का कारण हो, सफरिंग का कारण हो। यहाँ पर कंपैशन का हमसे एंटोनिम पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 आप देखो, इंडिफरेंस। ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन because indifference has the meaning that is opposite in meaning to the given word compassion, so we would mark option number 3 as the correct one। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस अभी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल पर, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हो। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस आगे भी मिलते रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।